Good afternoon, friends, and welcome. Good Sir, good afternoon. afternoon. Once again, today we are Dr. Kanse. कौन है साथ में? अनम्यूट कीजिए. वडील आहेत गावी म्हटलं. ओके. नमस्कार. नमस्कार काका. Yes, thank you. So Yeah. today we will study a very different case. Wonderful case of insulinoma. So what is the insulinoma? कौन बताएगा? इंसुलिनोमा क्या होता है? इंसुलिनोमा मतलब कितने लोगों ने डॉक्टर्स ने ये ऐसे केसेस देखे इंसुलिनोमा? नो प्रॉब्लम. तो किसी ने ये ऐसे केस नहीं देखी है प्रैक्टिस में. तो इंसुलिनोमा मीन्स यस ट्यूमर इन पैनक्रियास. ट्यूमर इन पैनक्रियास. ट्यूमर इन पेनक्रियास. ओके. और क्या होता है? और कौन बताएगा इंसुलिनोमा? तो इंसुलिनोमा में इंसुलिन लेवल बढ़ जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल. दैट्स व्हाई पेशेंट ब्लड शुगर ये कम होती है. एंड ब्लड शुगर अगर कम हो गई तो क्या होगा? इफ सडनली ब्लड शुगर डाउन हो गई तो क्या होगा? पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस, राइट? यस. सो इंसुलिन लेवल बढ़ने की वजह से शुगर डाउन हो जाती है एंड पेशेंट गोज इनटू हाइपोग्लाइसीमिया, may become unconscious also. So ऐसी ही ये केस है जिसमें इंसुलिन लेवल आउट ऑफ कंट्रोल बढ़ जाती है एंड इट इज अ क्रॉनिक प्रॉब्लम. तो देखते हैं हम केस इंसुलिनोमा. आपको स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. ओके. So insulinoma may occur due to tumor, cyst in pancreas, pancreatic cancers. So this is the case. 73 years old man is a manager of SBI Bank, State Bank of India. He was from Amravati. Visited my clinic on date 4/11/2007 for consultancy.
After procuring reports on the pancreatic secretions, the patient was also having hypertension and IHT, for which he was under allopathic treatment since 1980. So 73 years old man. पहले हम पूरी हिस्ट्री देख लेते, फिर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा. The detailed history of this patient. History in brief: the patient was working in the State Bank of India, was manager for a period of about 20 years. Since 20 years, he was working as a manager in SBI Bank. His family is consisted of 3 daughters and 2 sons, with wife and grandchildren. His affinity is more towards son as compared to daughters. तो दोनों भी बॉयज जो थे, लड़के जो थे, सन्स, वो बहुत ही क्लोज थे, बट डॉटर्स से ठीक ठीक कि है लड़कियां, लाइक दिस. So he was a very obstinate and angry person. His anger becomes temper tantrum. He is a very stingy, miserly. Stingy, that means miserly. Very miser about money, and is never ready spend on either routine or family responsibility. पैसा जल्दी निकलता नहीं था. He is also very unpredictable person, giving priority to self interest only. जो उन्हें पसंद रखता था वही वो करते, जो उन्हें पसंद है वही करेंगे. So due to his nature of neglecting others, he was not having close relations with friends, either at working place or in the society. So किसी से भी गुड रिलेशंस नहीं थे, कोई भी लोग उनसे उनके इतने करीब नहीं थे, बिकॉज ऑफ हिज नेचर, निग्लेक्टिंग नेचर. डॉक्टर कन से ऊपर का पढ़िए आप. The expenses वो पढ़ना है. हाँ, मुझे ऊपर के लाइंस नहीं दिख रहे इसलिए. The expenses aroused willingly or unwillingly were very painful to him. For example, before 4 years he gave rupees 3 lakhs to his son for business purpose. He is very miser person, but उनके एक लड़के को कुछ तभी शॉप डालनी थी, कुछ बिजनेस करना था स्टार्ट, तो उसके लिए उन्होंने 3 लाख रुपए उसे दिए, 3 lakhs. But since that day he was always grumbling. जैसे उन्होंने पैसे दिए उस दिन से कंटिन्यूअस फिर हर दिन वो बात निकलती थी कि मैंने 3 लाख रुपए दिए, मैंने 3 लाख रुपए दिए, as if he has lost this amount, जैसे कि उसने वो गमा दी. He is a very discontented, impatient with restlessness. He is over anxious towards his health. very over anxious. इसे हम और हमारी टर्म में क्या कहेंगे? ओवर एंजियस. Hypochondriasis. Yes, hypochondriasis. Tremendous anxiety about health. Tremendous for a small complaints, for a small problems. So minor things were disturbing him, and he become
restless. If small boil or eruption on the body, it was taken very serious and he used to tell it everybody. He was used to take allopathic medicine for very minor problems. Yes. So छोटा सा भी प्रॉब्लम है तो फट से डॉक्टर के पास जाना, मेडिसिन खाना. अगर एक भी दिन मेडिसिन नहीं लिए तो उनको ऐसा लगता था कि जैसे मैंने कुछ तभी आज मिस कर दिया. Yes. So he is of the opinion that without medicine he cannot live or survive. Past history: suffered from bronchopneumonia, diarrhea, fracture of right elbow, hypertension, ischemic heart disease, hyponatremia, septicemia, febrile encephalopathy, retinal hemorrhage in the right eye, and prostatectomy. Yes. So prostate was operated. So these are the diseases he suffered in his life. Now the chief complaints. Chief complaints was recurrent episode of unconsciousness, and sudden collapse due to hypoglycemia. मतलब ये ऐसे उनके अनकॉन्शियस और कोलैप्स के एपिसोड्स थे कि जैसे टीवी देख रहे हैं, सोफा पे बैठे हुए और सडन कोलैप्स हो जाते थे. फिर उनके मुंह में शुगर डालो तो 1-2-3 मिनट में होश में आ जाते थे. सडन कोलैप्स, बिकम अनकॉन्शियस. तो कंटिन्यूअस उनके पॉकेट्स में शुगर रहती थी कि कहीं गए तो पट से वो शुगर डाल दो मुंह में, लाइक दिस. Profuse perspiration with dullness, drowsiness, and giddiness. Great prostration. Abdominal distension with activity and indigestion. Involuntary urination, stool tenacious, pain in throat, cataract, sexual weakness, appetite completely lost, passing of letters gives rise to relief. Breathlessness due to choke up of nose, itching all over the body, and burning in palms and soles. So these are the chief complaints, and the severe most complaint was recurrent episode of unconsciousness and sudden collapse due to hypoglycemia. This is most important and most severe complaint. Reports. Serum insulin was 292.78 internationally, and generally the normal insulin level in human body is 2 to 25 IU. So it was tremendously increased, out of control increased to 92. So what is the miasm? It is syphilis, out of control. And layer, that is the 5th layer, endocrine. Now the rubrics. So आप लोगों ने हिस्ट्री देखी है, तो क्या रूब्रिक्स इस हिस्ट्री पर से हम ले सकते हैं?
Yes, Rahul He- Shibul. Hypochondriasis. Hypochondriasis. Excuse me, sir. Avarice. Awareness, it is a psychotic rubric. Mhm. Involuntary urination, sir. Involuntary what's urination. common. Yes. Yes, it is a particular rubric. Involuntary urination. General also. obstinacy. Obstinacy. Okay. Obstinacy is again a psychotic rubric. Psychotic. Yeah. Unconsciousness with collapse. Syncope, collapse with unconsciousness. Okay. Or Elements from financial loss. We can for him it's a loss one. elements from financial loss. Okay. Or तो राइट साइडेड ले सकते हैं सर. राइट साइड डिटर्मिनेशन. राइट साइडेड फ्रैक्चर राइट साइड में हुआ. हाँ, साइड रेपटाइजेशन में साइड नहीं आएंगी, साइड लेकिन नहीं सर. हाँ, we can consider the prescription. side. We want a Prescription, right-sided remedy. Yes. और कोई rubric? ऐसे strong rubric कुछ syphilitic केस है. Sir, anxiety about health. Anxiety थोड़ा about टेंशन health. कसं That is the hypochondriasis, right? तो मैं आपको पहले अभी वीडियो दिखा देता हूँ. Okay? Yes. Yes, sir. आपकी स्क्रीन पे वीडियो आया? येस सर. थोडं टेन्शन आलं. कसं? आपण Yes, sir. नॅचरल टेन्शन. त्यामुळे काय व्हायचं? काही होत नव्हतं मला. बीपी वाढायचं आणि भूक नाही लागत होती. भूक तर मला पहिलेपासून लागत नाही. एवढा मी फील्ड ऑफिस होतो ना, 1.5 पोळीचा डबा घेऊन जात होतो. माझा डबा पाहून लोक हसत होते. अच्छा. मग भूकच माझी खतम होऊन गेली. बॅटरी सर्व्हिस लागली स्टार्टिंगला तर मला भूक खतम होऊन गेली आणि फॅटीनेस यायला लागला नंतर. बँकेचं तसंच होतं माझं. कुठली गोष्ट इतकी वाढवायची नाही आणि ईश्वराने मला साथ दिला. स्वतः चिडत होते. माझ्या स्वतः चुकीदारी मी असं केलं मी तसं केलं. मी दुसऱ्यावर कधी चिडत नव्हतो. त्याच्यामुळे ते बँकेतले स्टाफ मुलींच्या बाबतीत तसं झालं की माझं हे चुकलं म्हणून तिला माझं चुकलं बा मी नीट पाहिलं नाही दोघी म्हणून असं झालं. तसं आहे. आतापर्यंत एका मुलीचं घर झालं औरंगाबाद ते एक टेन्शन होतं. आता तिचं घर झालं फॅट झालं ते टेन्शन रिकामं झालं. असे संसारिक टेन्शन होतं दुसरं काही नाही. आता ते टेन्शन मी मनाला लावूनही घेतलं. काय माझं आम्ही ऍक्सेप्ट करून घेतलं. म्हटलं बरं आम्ही म्हटलं तुमचं नसल पटत तर तुम्ही वेगळं घेऊन जा. पट्टीचा नवरा म्हणजे मी वेगळं हालता आम्ही डायव्हर परत घेऊन गेले. त्याच्यामुळे झोप कमी होऊन गेली. झोपच कमी होऊन गेली. कसे विचार? हे असं खर्चाचे अमकाचे टमकाचे सांसारिक विचाराचा पुष्कळ असतात. खर्चाचं काय? आता एक वराळ दुकान घालून दिलं. 5-6 लाख रुपये त्याच्यामध्ये गेले. आपलं पुढचं निघतील की नाही, पुढे काय करायचं, पुढे काय होईल हे सगळं ते त्याच्यानंतर त्यामुळे काय होतं? चिडचिड होतं. चिडचिड होतं. काय होतं कसं चिडचिड? चिडचिड दिवसभर असं मनावर ठेवून घ्यायचं की कसं करेल काय करेल तुझं कसं होईल त्याचं कसं होईल. बस नोकरी केलीस बरं झालं असतं अशा दृष्टी. पोरांनी नोकरी केली असेल तर नोकरीच्या विरोधात असतो. करायचा धंदाच करायचा. मला तर मग एस्टॅब्लिशमेंट करून देणं भाग पडलं. त्यामुळे काय होते? काय करता तुम्ही मग असे विचार आले? काहीच नाही.
काहीच करत नाही. सकाळी शिवाची पूजा करतो, जप करतो, गजानन महाराजाचा जप करतो, देवीचा जप करतो, गजानन महाराज स्तोत्र वाचतो, सगळं करतो. 2-2.5 घंटे माझे पूजेत जातात, समजलं ना. आणि नंतर मग जेवण मिसेस बरोबर. बस सून जशी सून आली नोकरी जाते, एक सून वर राहते, त्यामुळे मला काही टेन्शन असं नाही. मला 3 वर्ष झाले, पण ते लेकरू बाळा वगैरे काही नाही. ते थोडंसं वाटते काय वाटतं? झालं पाहिजे म्हणून. ट्रीटमेंट तिला चालू आहे सध्या, डॉक्टर मला शांत करायची. दुसरं काय नाही. त्यामुळे काय होते? नाही आहे म्हणून काय होते? काय होत नाही, दगड आहे तुम्हाला काही होत नाही. मला ना फक्त मला ब्लड प्रेशर वाढलं की चिंता वाटते, झोप नाही आली. झोप मला आलीच पाहिजे. चुलत भाऊ तिथे गेलो आम्ही, ते त्याचं सगळं मशानक्रिया वगैरे सगळं केली. वर्षश्राद्धाला गेलो आणि वर्षश्राद्धाला च्या वेळेला झालंय. वर्षश्राद्धाला मग ते 2 दिवस राहिलो, पाणी इकडे तिकडे चेंज झालं आणि ते मला वाटलं नाही असं होईल म्हणून. शौचा मारून मला चक्कर आली. 2 दिवसाचा त्रास होत होता, लघवीचा खूप त्रास व्हायचा. जायचं पटकन जायचे, पटकन यायचे, पटकन जायचे, पटकन यायचे. मग 2-4 वेळा चांगले गेले, पण नंतर गेले तर ते असे पडायचे. लघवीला उभं राहता येत नव्हतं त्यांना, तर त्यांना मी सांभाळत होती. पण मला ते नंतर मग काय नाही, मला हे सांगा की हे व्हायच्या आधी म्हणजे त्या 2-3 महिन्यात काही एखादी टेन्शनची घटना घडली? काहीच नाही. Blood reports. Hypoglycemia cause insulinoma. Serum insulin, it was 292 and the normal range is 1.7 to 30. USG of abdomen, sorry, CT scan. No pancreatic swell is demonstrated. चष्मा नाही आणला तुम्हाला. ही महाराजांची मूर्ती शेगावून आणली. Cause of insulinoma is not known. तो हिस्ट्री आप लोगों ने देखी, अब बताइए। Reproaches himself. Approaches himself. Okay. Oh. Fanatic है sir? Fanaticism? Fanatic? मतलब रिलीजियस एक्सेसिव है तो लगता है ना वो नहीं, एक्सेसिव रिलीजियस मतलब वो थोड़ा सा उसमें है तो नहीं लग सकते ना. He is basically he is a Brahman. Okay. So it is common. Okay. Sorry sir. Yes. Self-reproach. Self-reproach. Fastidious. Fastidious, yes. He was very fastidious. Yes, very nice. Anxiety about family members. Anxiety about family members. अगर उसको family members के लिए anxiety होती है ना, तो वो बार उस 3 lakhs के ऊपर ग्रम्बलिंग नहीं होता था उनका. So the rubrics, that is the anger, temper, tantrum. थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो इतना भड़क जाना, that is anger, temper, tantrum, anxiety, trifles or hypochondriacal,
stool tenacious, urination involuntary, abuse or poisoning with medicine and hot patient. तो इतनी सारी वो मेडिसिन लेता था, अगर उसने किसी दिन कोई टैबलेट नहीं खाया तो उसे ऐसा लगता था कि आज मैंने कुछ तभी मिस किया। तो इतना एडिक्ट होना मेडिसिन के लिए कि थोड़ा सा भी कुछ हुआ, बिकॉज ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियकल नेचर, कि थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो सिंपल चीज के लिए भी टैबलेट्स लेना, एंटीबायोटिक्स लेना ना, पेन किलर तो कंटिन्यू जब में ही होती थी। तो दिस इज द अब्यूज ऑफ मेडिसिन एंड हार्ट पेशेंट। तो वेरी सिंपल रूब्रिक्स इस केस में मैंने लिए, क्योंकि जो केस का मतलब इंसुलिनोमा का कॉजेशन था वो यहाँ पे अननोन था। बेसिकली इंसुलिनोमा ये कैंसर ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज, देन SOL ऑफ पेनक्रियाज और ट्यूमर्स, इसकी वजह से होता है। लेकिन यहाँ पे पैसा कुछ नहीं था, ना सिस्ट थे, ना ट्यूमर था, ना और कुछ था। Only the secretion of insulin was uncontrolled, right? So जो उस केस में थ्रो एंड थ्रो था, बचपने से उनका नेचर एंगर, टेम्पर टैंट्रम, मुंह पे ही जैसे उनको किसी का गुस्सा आया तो मुंह पे ही वो गुस्सा निकाल देना, इस नेचर की वजह से उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखता था। बैंक में भी उनका वही प्रॉब्लम था, लोग उनसे दूर ही रहते थे। ये खुद उन्होंने ही बोला कि लोग मेरे पास आने को डरते थे, क्यों? कि मैं मुंह फाड़ था, बोले पट से मुंह पे ही कुछ बोल देना। दिस इज एंगर, टेम्पर टैंट्रम। जो हाइपोकॉन्ड्रियकल के नेचर है वो तो लिया ही हमने। देन स्टूल कंटिन्यूअसली, मतलब सिंस 20 years he was passes tenacious stool, very sticky, 2-3 बार फ्लश करना पड़ता था, बोले तब जाके निकलता था। दिस इज टीनेशियस। देन इनवॉलंटरी यूरिनेशन, बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं। कभी कभी तो ऑफिस में भी उन्होंने बताया कि मेरी यूरिन पास हो जाती थी। दिस इज इनवॉलंटरी यूरिनेशन एंड अब्यूज ऑफ मेडिसिन। तो इसमें आप लोगों को कुछ डाउट रूब्रिक्स के लिए? सर इनका हाँ यस, सो अँगर, टेम्पर टँट्रम घेऊ शकतो आपण, म्हणजे ते आता सिफिलिटिक केस आहे तर हे सायकोटिक रुब्रिक आहे तर घेऊ शकतो का? यस, यस, ले सकते। क्यों ले कारण सकते हैं? जेनेटिक ट्रेट आहे. बिकॉज ऑफ innate characteristics, because of his Okay. non-disease characteristics. ओके सर, Yes. थँक यू. Yes. और सर इनका फैमिली और एंजाइटी टुवर्ड्स फैमिली मेंबर्स था एक, वो भी एक था, एंजाइटी ऑफ हिज ओन हेल्थ। that anxiety more concern about and because of only money. राइट, अगर कुछ ज्यादा होगा तो फिर मेरे पैसे जाएंगे, या इसलिए वो एंजाइटी फॉर फैमिली मेंबर्स नहीं लिया। ओके। यस, और सर इनेट कैरेक्टर मतलब इनका जो परसिस्टेंट नेचर रहता है पहले से, दैट वी सिंस बर्थ। अच्छा, यस, तो अभी किसी किसी के नेचर में चेंजेस आते हैं, समटाइम्स पेशेंट्स प्रेजेंट विद दिस कंप्लेंट, चीफ कंप्लेंट्स, और अभी का नेचर में भी कुछ चेंजेस रहते हैं उनके कि रिसेंटली दे हैव बिकम मोर एंग्शियस, रिसेंटली बिकम मोर एंग्री, और यू नो लाइक या तो सम ग्रीफ कम्स, तो ये Yes. सब चीजों को कैसे कंसीडर करना है? तो ये अगर अकॉर्डिंग टू प्रिडिक्टिव होम्योपैथी हम अगर देखते हैं तो अगर वो प्रेजेंट रूब्रिक्स हम अगर लेते हैं जो बेसिकली क्रॉनिक डिजीजेस होते हैं, जहाँ माइजमेटिकल केसेस होते हैं, उनमें अगर हम प्रेजेंट सिम्टम लेंगे, प्रेजेंट जो भी है नेचर, उसका डिस्पोजिशन, देन फिजिकल जनरल्स में जो भी प्रेजेंट मिलेगा,
अगर ये रूब्रिक्स लेके हम प्रिस्क्राइब करते तो दैट प्रिस्क्रिप्शन में बी द फिनोटाइपिक प्रिस्क्रिप्शन। इसीलिए अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल देना है तो आपको फिर उसका जेनेटिक ट्रेट्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे, राइट? यस, बट यही थीम अलग हो जाती है जब हैनेमन का आप क्रॉनिक डिजीज पढ़ेंगे। हैनेमन ने कहा है कि जो प्रेजेंट है, जो स्ट्रांग है, जो आपको दिख रहा है, उसे पिकअप करो। यस, सो हम वो उसका अलग हम एक ये शुरू कर रहे हैं सेशन, उसमें हम वो समझाएंगे कि हैनेमनियन थ्योरी क्या है, राइट? Yeah, because 153 में he always say more striking. बट वो किस केसेस के लिए कहा है उन्होंने? Acute. मोस्ट सीवियर, स्ट्रॉन्ग, फास्ट प्रोग्रेसिंग सिपिलिटिक केसेस। Okay. हाँ, these are slow progressing syphilitic cases जो एकदम chronic हो जाते हैं, right? Yes, acute cases but most syphilitic fast progressing diseases के लिए वो कहा है कि जो है मतलब आपके पास टाइम नहीं होता है, पेशेंट के पास भी टाइम नहीं होता है, आपको उस कंडीशन से उसको सबसे पहले बाहर करना है, आउट ऑफ डेंजर फॉर द लाइफ करना है, तो उन केसेस में आपको वो लेना है। और वही सर जनरली अभी केसेस जो भी आ रहे हैं ना, उसमें दिस इज द ओनली बिग डिफरेंस। एक डिफरेंस जो नोट करते हैं अपना लेक्चर सुनने के बाद, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलरिटी में तो इनहेरेंट कैरेक्टर्स, क्योंकि पेशेंट तो बहुत सारी चीजें बताता है, इसमें से हाउ टू रिकॉग्नाइज हिज इनेट नेचर एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज, क्योंकि उसमें प्रेजेंट में तो डेल्यूजन भी बताता है, एलिमेंट फ्रॉम भी बताता है, बाकी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ही डिस्क्राइब्स अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, बट इसमें से उसका एक कोर निकालना है, तो दैट इज व्हाट इज अ समवेयर स्किल एंड समथिंग आर्ट, आई थिंक सो, व्हिच समवेयर वी हैव टू लर्न अबाउट इट। तो उसमें से अभी आपने इतने, हम लोग ने बुक रीडिंग लेक्चर्स के द्वारा थोड़ा वी आर एबल टू अवेयर लिटिल लिटिल कि बाबा ये सब चीज क्या है, कहाँ तक जा रहा है ऐसा। We'll get through it. यस, अगर आप लोग सही में इंटरेस्टेड है और ऑलवेज रहेंगे तो हम बहुत दिनों तक ये चालू रखेंगे। यस, और जो मैं नया सेशन शुरू करने जा रहा हूं, उसमें तो आप एकदम सरप्राइज हो जाएंगे, ऐसे ऐसी चीजें मैं सामने लाऊंगा कि आप लोगों ने कभी सुने भी नहीं होंगे। और ओनली हैनेमन्स ने कही भी ही चीजें लाऊंगा जो हैनेमन्स ने बोला है, जो हैनेमन्स ने लिखा है, विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा वो। यस जी सर। तो वो सेशन बहुत ही एक्सीलेंट सेशन होगा वो। यस सर, और वो बहुत लंबा चलने वाला है सर। हम जुड़े रहेंगे सर। सीखने मिलेगा। यस, सो दिस में सर हाइपोकॉन्ड्रिया नेचर जो है ये साइकोटिक होगा ना इसमें? हाइपोकॉन्ड्रियासिस इट इज सिपिलिटिक, नॉट साइकोटिक। It is syphilitic, out of control anxiety, exaggerated anxiety. It is syphilitic. सर परसों एक I come across one patient in clinic. तो दोनों कपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है दोनों। इसमें क्या मेडिसिन डाला है? डॉक्टर आंटी जी बच्ची की तबीयत अब ठीक है? और द्विवेदी आई थी, क्या नाम था उसका? ज्योति क्या? कट रहा है। हाँ। डॉक्टर कल से शायद आपका नेटवर्क सही नहीं है। It was mix match हो रहा था ना, उसका भी वॉल्यूम था साथ में। Yes. So probably that could be one reason. तो ऐसा है। तो कल भी सेम अभी हाइपोकॉन्ड्रियासिस से याद आया कि वन कपल के, तो हस्बैंड भी ऐसा था कि लाइक ये व्हाट यू यूजिंग दिस केमिकल्स है, इसमें क्या है तो ऐसा सस्पिशियस, एंड दैट फीमेल वाज, मतलब उनका वाइफ था वो, जो शी वाज वेरी हाइपर एंशियस कि ये सब मैं ले लूं क्या, इससे क्या होगा नहीं ना। तो ये सब चीजें थोड़ा इवैल्यूएट करना मींस वेदर इट इज अ सस्पिशियसनेस
मिस्टरफुलनेस क्या है वो थोड़ा, तो उसका थोड़ा मतलब ये सब चीजें थोड़ी कंफ्यूज रहता है कि हाउ टू ट्रेस दिस पीपल्स, थोड़ा ये रहता है। आई विल टेक हर हिस्ट्री, अभी तक हिस्ट्री लिया नहीं है। वंस आई विल टेक द हिस्ट्री देन आई विल डिस्कस विद यू सर। ओके, तो आज एक पेशेंट आया मेरे पास। उस पेशेंट का एक सिम्टम था, मैंने रूब्रिक बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं रूब्रिक। 6 महीने पेशेंट एकदम चेयरफुल होता है, 6 महीने बहुत अच्छा लगता है, और 6 महीने एकदम डिप्रेशन में चले जाता है। ये कंटिन्यूअस अल्टरनेटिंग होते रहता है। सर इट्स cheerful alternate with sadness. यस, वो रूब्रिक Cheerful लिया मैंने, alternate with sadness. एक्चुअली यही रूब्रिक मिला मुझे, यही लिया मैंने, लेकिन मैं कुछ अलग ढूंढ रहा था लेकिन वो नहीं मिला। Okay. यस, ये तो रूब्रिक इजीली मिल जाएंगे, लेकिन मुझे कुछ डिल्यूजन डेलिरियम में वो रूब्रिक ढूंढने का था लेकिन नहीं मिला। 6 महीने पेशेंट एकदम ओके, बहुत अच्छा रहता है, बहुत कुछ करने की उसको इच्छा होती है, ये करूँ वो करूँ ऐसा करूँ, बहुत प्लानिंग करता है, करता है। अचानक 6 महीने बाद पूरा डिप्रेशन में चले जाता है, डिस्पेयर में चले जाता है, इवन सुसाइडल थॉट्स आते हैं, कंप्लीट अपोजिट हो जाता है। सर पीरियोडिकल एग्रेवेशन, पीरियोडिकल एग्रेवेशन भी देखा मैंने, लेकिन 6 मंथ के लिए कोई नहीं था रूब्रिक। ओके, एनुअल एग्रेवेशन है सिर्फ 6 मंथ्स। ये तो ओके, आप लोग ढूंढो, अगर मिलता है मुझे बताना, राइट? तो क्या मेडिसिन आ सकती है इस पेशेंट की? सल्फर सर। आपने किया शायद। हाँ सर, किया मैंने रिपोर्ट किया। या सो anger, temper tantrum, anxiety, hypochondriacal, tenacious stool, urine involuntary, dribbling by drops, and abuse of medicament, poisoning of medicament. So Naxomica and sulfur. We are with Naxomica and sulfur. But Naxomica, it is chilly, though it is very angry, but chilly. Sulfur, it is hot, thirsty. एंड अगेन अकॉर्डिंग टू हैनेमन, अगर हम इस सोचते हैं इस केस के लिए, मैं आपको थोड़े थोड़े हिंट दे रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ डॉक्टर हैनेमन के। तो डॉक्टर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनेमन का क्या कहना है कि नक्सोमिका इट इज अ एक्यूट रेमेडी, इट इज नॉट अ क्रॉनिक रेमेडी। जो मायज़मेटिकल केसेस होते हैं, उनमें एक्यूट रेमेडी कभी प्रिस्क्राइब नहीं करना, ऐसा डॉक्टर हैनेमन ने कहा। He also said, और जो एक्यूट डिजीजेस है इसके लिए उन्होंने एक टर्म यूज की है, दैट इज द एंटीसोरिक। और जो क्रॉनिक केसेस है उसके लिए एंटीसोरिक, और जो एक्यूट केसेस है उनके लिए नॉन एंटीसोरिक। तो नक्सोमिका ये नॉन एंटीसोरिक रेमेडी है और सल्फर इट इज एंटीसोरिक रेमेडी है, राइट? सो सल्फर इट इज अ remedy for chronic disease and I prescribe sulfur. So rubric selected were according to the presenting miasm, that is syphilis, and the local medicine sulfur का। but हम हमेशा ये सोचते हैं कि सल्फर इट इज अ सोरिक रेमेडी, है ना, किंग ऑफ सोरा, एंटीसोरिक रेमेडी। बट ऐसा नहीं है, सल्फर इट इज अ ट्राइमाइजमेटिक रेमेडी। सल्फर में सोरिक सिम्टम भी है, साइकोटिक भी है और सिफिलिटिक भी है। सो सल्फर 200 वाज गिवन टू हिम एंड follow up after 15 days. The first thing to improve in 15 days was his episodes of unconsciousness and collapse, which had never improved with any treatment. तो जो मेन स्ट्रॉन्ग सिम्टम था उनका चिप कंप्लेंट में, दैट वाज अनकॉन्शियसनेस, कोलैप्स, और वही 15 दिन में टोटली कम हो गया। एक बार भी उनको
कोलैप्स नहीं हुए, अनकॉन्शियस नहीं हुए. Then none of the day within this period he showed such symptoms. His involuntary urination was improved, stool become normal, appetite become normal, which was voracious before treatment. तो जो फिजिकल जनरल्स हैं वो भी इम्प्रूव हुए. एंड हम हमेशा कहते हैं कि सबसे पहले फिजिकल जनरल्स इम्प्रूव होनी चाहिए, राइट? So this is good follow. After that, after 1 month, toothache start. It is a ROS, return of original symptom toothache. Then insulin level become 48. देखो कितना था और 48 पे आ गया within a 2 months near about. It is 48. काही नाही तर राऊंड घेऊन टाकते. And blood sugar level fasting was 111. Post meal was 135. Third follow, gastritis. It is because of acidity. Small reddish eruption on the space with itching. Insulin level was 21. Again, it became half. Blood sugar was 88 fasting and post meal was 132. So again, very good follow because we come at the level of epidermis, first layer. And again, after 1 month, pain in chest and abdomen with breathlessness and sticky stool, dullness and weakness. But in this follow-up, patient again feel the breathlessness, abdomen and chest pain, stool जो पहले थे टीनेशियस वैसे ही वापस हुए, डलनेस एंड वीकनेस आया. अब ये क्यों हुआ? दिस इज रॉन्ग फॉलो. ये क्यों हुआ? कहाँ क्या मिस हुआ, कहाँ क्या गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से पेशेंट बिकम डल? मतलब टॉक्सिन्स अगेन शिफ्ट अपवर्ड टू मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स. ये क्यों हुआ? व्हाई दैट return of toxins? तो देखते हैं क्या हुआ. The condition of patient become reverse due to application of some ointment on face. जो face पे itching आया पेशेंट को, उसके लिए without any intimation he used the ointment by him. Due to that, curing process hampered. And after that, I repeated sulfur 1 dose, and the last 2 follow-ups. Eruption on face descends to chest, abdomen, and then leg. Now, no any more eruptions or itching. Insulin level 2.69. Blood sugar fasting 114 and post meal was 141. And after 6 months, insulin is 2 and fasting sugar 76 and post meal 123. So this is last follow, and the Hahnemann and also the predictive homeopathy क्या कहती है? So disease comes from 5th layer syphilis to 1st layer sora, according to Dr. Vijayakar's 7-layer chart of suppression. Hence, it is proved that physician's high and only mission is to restore the sick to health. Sick to health. जहां हम टोटल रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ कर देते हैं, करते हैं, दैट इज द कंप्लीट क्योर. तो हैनेमन ने
क्यूअर नहीं कहा है, हैनेमन ने कहा है रिस्टोर द सिक टू हेल्थ, दैट इज द कंप्लीट क्योर. सो this was the case. Now we will see the follow-ups. तो इसमें किसी को कोई क्वेरी, कोई डाउट? यस डॉक्टर कंसे, आप पूछ सकते हैं. हाँ सर, हम लोग अभी बोले थे कि लाइक यू नो एज माइasthmatics प्रिस्क्रिप्शन नक्सोमिका इज एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन. तो समटाइम्स अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नक्सोमिका आता है तो आपको गो अप. जी, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है. ये जब हम वो सेशन चालू करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा. यस, कि नक्सोमिका क्रॉनिक में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, राइट? तो इसका आंसर आपको जरूर मिलेगा. है ते खूपच इतकं हे ते खूपच इतकं की फास्ट नाही घेता, दमा लागतो समजला ना, आणि कप सारखा निघत राहतो, आणि पडसाट वीकनेस इतका आहे की थोडं फिरायला गेलं की दम लागतो. अच्छा, फिरायला फिरायला मग एक अर्धा फरलांग पर्यंत जरी गेलं तरी. तसं किती फिरता तुम्ही? पहिले तर खूप फिरत होतो हे अटॅक यायच्या आधी. आता नाही फिरणं होत तेवढं. अच्छा, बरं, जो विकनेस आहे हा 1 महिन्यापूर्वी जसा होता तसाच आहे की त्याच्यापेक्षा जास्त आहे की कमी आहे? कमी आहे. बरं, ते जे अटॅक्स यायचे तुम्हाला, घाम, बेहोश होणे, ते कसं आहे? ते नॉर्मल आहे बिलकुल, येतच नाही जवळपास. बंद झाले, पूर्ण कम्प्लीट बंद झाले? कम्प्लीट बंद झाले. सारखे 30 वगैरे व्हायच्यावर खूप घाम सुटायचा, लगबग बिलकुल सगळे कपडे धुवून द्यायचे, ते नाही. ते नाही. मध्ये काय झालं होतं? मध्ये दाताचं दुखणं, दाताचं दुखणं, तर मिठाच्या गोळ्या करायला सांगितलं, त्याने थांबून गेलं. गॅमेक्स लावलं होतं, दाताचं दुखणं वाढलं म्हणून मी गॅमेक्स लावला. तर गॅमेक्स लावला तर ती म्हणे लावू नका. मग मला माझ्या पोरीने सांगितलं मिठाच्या गोळ्या करा. मिठाच्या गोळ्याने बरं वाटलं, पान खाणं बंद केलं. बरं, ते गॅमेक्स लावल्यानंतर काय झालं होतं? काय नाही, एक मामूली घाम आला. ठीक आहे. तसं तुम्हाला कसं वाटतं ते सांगा. मला तर फक्त पोटाचं डिस्टेन्शन सोडलं आणि दम लागणं सोडलं तर बाकी मला सगळं बरं वाटते. बरं वाटते. काय आता खूप दूर हिंडून पाहिलं तर आम्ही हिंडत होतो की पूर्वी बनीन मला सगळं ओळखून जात होतं आणि पोटावर डिस्टेन्शन येत होतं. चालल्याने डिस्टेन्शन येत माझ्या पोटावर, म्हणजे इथे आणि इथे कडक असं वाटतं इथे आपण काहीतरी गोट्या ठेवला. अच्छा, असं आतून ओढल्यासारखं होते, समजलं ना. आणि थोडं विश्रांती केली की मग नॉर्मल होऊन जाते. आजच नाही, पुष्कळ दिवसापासून भूक नाही लागत. मी परगावाला जात होतो पुष्कळ वर्षापासून, तर माझा 1.5 पोळीचा डबा होता. अच्छा अच्छा अच्छा. म्हणजे लोक नाव करायचे म्हणजे साहेब तुम्ही एवढ्या राहूच करू शकता. अच्छा अच्छा अच्छा. म्हणजे मी याच्यापेक्षा जास्त खाल्लं तर मी कामच नाही करू शकणार. म्हणजे जे प्रिव्हियस नॉर्मल होतं जे तीच आहे आता, तर ती आता स्टेज आलेली आहे. ठीक आहे. खूप आहे, भयंकर खात आहे. कधीपासून? पुढे घेतल्यापासून. अच्छा, 8 दिवसात. या 8 दिवसात जास्त. पहिले खात होते इतकं पूर्ण खात होते, पाठ, अंग, खोबऱ्याला ते लावूनही ठेवलं, समजलं, स्नान केलं तरी खात येतेच. बरं, पण ही खाज अजून वाढेल जेव्हा पोटाचं कमी होईल. वाढू द्या का, पण झोप तर लागली पाहिजे ना. लागेल ना. Insulin level
48.90. Blood sugar 111 and post meal 135. Yes. का इथे दुखते छात्यामध्ये. बर. सर इनका ब्लड प्रेशर का मेडिकेशंस एंड ऑल अदर मेडिसिन्स विल बी ऑन ओनली क्या? शुगर्स हाउ वी मतलब like What? he was on blood pressure medications also and Yes. sugar also. So what we have done about मतलब वो मेडिसिन चालू ही रहेगा उनका फिर? ब्लड प्रेशर की रेमेडी शुरू ही थी. बाद में वो एक्चुअली पेशेंट नियर अबाउट टोटल हील होने के बाद वो टैबलेट कम हुई. Yes. The time they has to continue our treatment or then? Yes, continue. नहीं बाद में ये पेशेंट अभी लास्ट ईयर इसकी डेथ हुई. यस, फिर वो मतलब उनका ऐसा हो गया था कि वो टोटल एलोपैथी स्टॉप कर दिए जो उनको डेली किसी ना किसी प्रॉब्लम के लिए लेते थे. बाद में कुछ अगर एक्यूट प्रॉब्लम आता है, कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम आते हैं तो फिर होम्योपैथी लेते थे. यस. का इथे दुखते छात्यामध्ये. बर. आणि खूप पोट टाळून जाते. चाललं ना की आणखीन पोट टाळते. आराम असतो ना की आराम असा पोट नाही, चालायला पोट नाही. आणि विकनेस टेरिबल वाटते. लैंगिक विकनेस ही खूप आलेला आहे. अच्छा. आणि रात्री एखाद्या व्यक्ती 3-4 लग होऊन जाते आपण. अच्छा. समजला ना. आणि एंजायना आम्हाला पुष्कळ दिवसापासून होताच. फक्त ब्लॉकेजेस नाही, एंजायना आहेच. तर हार्टची ट्रीटमेंट आपण सगळेच बंद केली आहे. बरोबर ना. तुमच्या आता कुठली फक्त ब्लड प्रेशरची गोळी घेतो. बर. आता आणि अर्धी याची गोळी घेतो झोपेची. बर. आणि दूध घेतो रात्री झोपायच्या. बर. परंतु ते जे तुम्हाला झोप शांत नाही लागत. अच्छा. समजलं ना. आणि काय म्हणतो तुम्ही? ते जे हे यायचे शुगर डाऊन झाल्यामुळे घाम यायचा किंवा बेहोश दम वगैरे नाही. दम खूप लागतो. दम खूप लागतो. परंतु कफ निघत राहतो. कफ हे केव्हापासून निघून राहिला? पुष्कळ दिवसापासून. तुम्ही आलात तर मागं सांगितलं तुम्हाला. अच्छा. आणि दम वाढतो. आणि छात्यामध्ये इथे तेव्हापासून तेव्हा 3 वेळा नेबुलायझर द्यावं लागेल. अच्छा. तेव्हापासूनच आहे ते. आणि दम लागतो आणि छाता भरून येतो. बर. आणि इथे दुखते इथे छात्यामध्ये. म्हणून एकदा विचारून घ्यावं. बर. मागच्या महिन्यात तुम्हाला एकदा झालं होतं, घाम आला होता आणि 1-2दा झाला. या महिन्यात झालं का? नाही, काही या महिन्यात एकदाही नाही झालं. या महिन्यात आणखी कमी झाला आता इन्सुलिन. अजून कमी झाला. अच्छा. पण हे थायरोकेअरचे रिपोर्ट बरोबर असतात का? हो बिलकुल. पद्धत दोघांची एकच आहे. काही प्रॉब्लेम. त्यांचे 200 कसं आलं इथं पाहता. तेव्हा वाढलेलीच होती ना. तेव्हा तुम्हाला किती अटॅक्स यायचे ते दिवसातून? तेव्हा 80 शुगरवर त्यांनी मला पाठवलं होतं. 80 मला काय होतं ब्लड. तर त्याचं 200 आलं पहिलं. बरोबर आहे. मग त्यांनी नंतर कमी झाल्यावर पाठवलं. मग 292 असं झालं. तेव्हा एपिसोड होत होते. एपिसोड होते. आता अजिबात होत नाही. समजा ना. तर आता इतक्यात काहीच एपिसोड नाही. पण चालताना पोट फुगून येते इकडल्या साईडला. छाता फुगून दम खूप बोलता येत नाही. बर. बाकी अजून काही झालं होतं? सर्दी, पडसा, खोकला, ताप? खाज खूप सुटते आम्हाला. खाज येते. संडास होत नाही. संडास तपा होत नाही. चिकटपणा संडास मध्ये खूप. दररोज जावं लागतं. पाणी टाकलं ना सरळ तरी फ्लश नाही होत. फ्लश नाही होत.
चिकट होते हा, संडास. चिकट संडास. बरं, अजून काही ताप वगैरे आला होता? नाही ताप नाही, ताप तर येतच पण नाही. खाज कुठे येते जास्त? सगळ्या सगळ्या अंगाला, पाठीला, काही अशा फुंशा वगैरे येतात? इथे इथे कमीने खायला लागते शेवटी. कोरडी खाज येते? कोरडी खास कमी नाही, तसंच रुत्यासारखं ते खाजवलं नाही तर. अच्छा, बरं. विचार लागेल, पॅथॉलॉजिस्ट आहे ते. ते नाही माहिती. Insulin 21.73. Fasting 88 and post meal 132. चिकट चिकट पाणी निघते त्याला. खाजवतो, पूर्ण खाजवतो तोंड चेहरा. खाजवल्यावर परत चिकट चिकट पाणी निघते त्याला. दुसऱ्या दिवशी मग खिपल्या पकडतात, पावडर लावली की. मग काही जण खिपल्या निघून जातात, परत थोडं खाजवतो, पूर्ण खाजवतो तोंड चेहरा. खाजवल्यावर परत मग असं कुठेतरी हा व्हायला सुरुवात होते, मग तिथून ते बाळायला सुरुवात होते. इथून परत डोळे वगैरे सुजून जातात. पाणी निघतं चिकट चिकट. चिकट पाणी निघते त्यातून. आता तर काहीच नाही आहे ना, असं होऊन जातं झाकड्या कडक कडक. त्याला कमी झालं, कमी झालं. पहिले एकदम जास्त म्हणजे मध्येच वाढते, मध्येच वाढते कमी. असं वाढून जाते सगळं असं. अच्छा, सगळ्याच खिपल्या निघाल्या आज खरं. अब एक सवाल है, आपने दोनों भी फॉलोअप में ये देखा है कि पेशेंट बोलता है कि मुझे इचिंग हो रही है और ऑल ओवर बॉडी है. अब वो इचिंग में और ये इचिंग में क्या डिफरेंस है? अभी रियल इचिंग अकॉर्डिंग टू हेयरिंग, अकॉर्डिंग टू नेचर्स लॉ ऑफ क्यूर फेस पे स्टार्ट हो गई. तो दो इचिंग में क्या डिफरेंस है? सर त्यांचा हायपोकॉन्ड्रिकल नेचर असेल म्हणून त्यांना असं थोडंही जरी झालं तरी ते जास्त सांगत असतील. No, that itching was the disease symptom. इंसुलिनोमा में इंसुलिन लेवल बढ़ने की वजह से बॉडी पे इचिंग होता है, that is disease symptom. Now it is ROS, क्यूरिंग प्रोसेस. ये जो अभी सिम्टम आया ये अबू डाउनवर्ड जाने वाला है, तो ये स्टार्टिंग हुआ फेस से. दैट इज आवर क्यूरिंग प्रोसेस, राइट? यस. सो इट इज अकॉर्डिंग टू हेरिंग्स. खाज आल्यानंतर पाणी निघतंय ना? खाज आल्यानंतर असं केलं ना, हा, पाणी लागतं हाताला. पाणी चिकट चिकट पाणी असतं. आणि आणि खपल्या केव्हा येतात? खपल्या पावडर लावली, खोबरे तेल लावलं, पावडर लावली, मग ते पाणी बंद झालं. पावडर कोणची? सॅल्कम पावडर, अच्छा, पॉन्डची वगैरे. मग ते बंद होते पाणी. म्हणजे धापटाच येणार खिपल्यांचा असा, म्हणजे थोडे 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 मग. आणि हे सगळं काळं काळं होणार. बरं, हे अजून कुठे आहे का? नाही, बाकी कुठेच नाही, फक्त इथेच आलंय. आणि किती दिवस झाले यायला? हे तुम्ही दुसऱ्या वेळेला पुढे दिला ना? हा, महिना होतोय. या महिन्यामध्ये या महिन्यामध्ये तुम्ही दिला नाही का पुढे? या पुढे पहिल्यांदा ज्यावेळेस झालं त्यावेळेस तर अतिशय पुढे घेतली की पोहते. तिसऱ्या हप्त्याची पुढे घेतो की नाही आपण? पुढे घेतली की पोहते म्हणून. पुढे घेतली की या महिन्यातच झालं. या महिन्यात झालं. आणि छाता वगैरे फुगणं, पोट फुगणं चालल्यावर हे दोन्हीकडचे पोट फुगून जातात. छाता दम लागतो,
वरतूनच आणि दाबलं. कप निघत नाही लवकर, त्याचा पहिल्यापासून आहे. हे काय पुढे हे पुढे घेतल्यावर कपाचं थोडं जास्त झालं, कपाचं नाही. आणि ते हायपोग्लायसेमियाचे अटॅक्स ते कसे? आणि आता फिरायला तर गेलं की घाम खूप येतो. फिरायला लागलं तर खूप बनियन वगैरे सगळं होऊन जाते. अच्छा. थोडं जास्त नाही फिरायला जातो रे आम्ही, बसल्या एक बसल्या अर्धा किलोमीटर फिरायला जातो. पण ते जे व्हायचं आधी नाही नाही, तसं बसल्या नाही. बसल्या नाही होत होता. ते नाही झालं परत, जे ग्लानी किंवा नाही तसं नाही काय पण थोडंसं घाम घे मला. पण घाम येतो, तो घाम आला की एक गोळी खाऊन घेतो अच्छा. पेपरमिंटची, बरं वाटतं मग पेपरमिंटची गोळी खाल्ल्यावर. अच्छा. इथून घाम यायला सुरुवात होते, अच्छा. किंवा पेढा गिरा खाल्ला तरी हा. बरं वाटून जातं. हा. अच्छा, ठीक आहे. आणि पोट फुगण्याचं आहे. पोट फुगणं- आराम असला, झोप असते ना की काही मग नाही बघायचं. पण हे खाज हे चेहऱ्याच्या व्यतिरिक्त दुसरीकडे नाही आले अजून? दुसरीकडे आले, पाठीमागे येत होती मागे, अच्छा. पुढे यायचे पाठ पण ही जी खाज आहे अशी खाज तुम्हाला याच्या आधी पूर्वी कधी झालेली आहे का? लहानपणी वगैरे किंवा नाही, आठवा बरोबर झाली असेल कुठेतरी? लहानपणी मला खरूज होत होती, खरूज व्हायची. अच्छा. खरूज व्हायची, हाताला तळाला फोड यायचे, अच्छा. हे इथं देखील फोड यायचे, अच्छा. खाली पिवळा पस निघाला त्यातून. अच्छा. मग परडीचा पाला वगैरे लावायचा, ते बाहेरच्या 12 वर्षाच्या वेळेला. नंतर मग मोठा झालो मी, हां, सर्व माझं चांगलं झालं. ठीक. झालं छाती मोकळी वाटली पाहिजे, असं वाटतं खूप. डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, जेवण किती आहे? फक्त 2 पोळे. ब्लड शुगर तिच्या हातच्या म्हणजे बिलकुल पतल्या पतल्या असतात. the insulin level was 2.69. It is absolutely normal. हाँ सर, Yes, इनका really. डाइजेशन का ये प्रॉब्लम जो परसिस्टेंट है, या तो दैट he just is how to understand this digestive system is most of the times telling about distension. तो इसको समझना कैसे कि whether to every follow up he is mentioning on that. देखो, डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, इट इज सोरिक सिम्टम. और जो हाइपोकॉन्ड्रियाकल पेशेंट्स है और जो डिस्कंटेंटेड पेशेंट है, ये ऑलवेज आपको कुछ ना कुछ कंप्लेंट करेंगे ही. लेकिन हमारा कंसंट्रेशन, हमारा पूरा ऑब्जर्वेशन, हमारा पूरा ध्यान किस तरफ होना चाहिए? जो पेशेंट डिस्कंटेंटेड है, जो एंजाइटी हेल्थ अबाउट है, जो हाइपोकॉन्ड्रियाकल है, ऐसे पेशेंट आपको कभी भी कंप्लीटली ओके होगा है बोलेंगे ही नहीं. वो कुछ ना कुछ तभी बताएंगे ही आपको. फिर ऐसे सिम्टम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते, जैसे कि डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, इट इज वो आज है कल नहीं है, थोड़ी देर रहेगा निकल जाएगा, इट इज सोरिक सिम्टम. तो ऐसे सिम्टम्स को इंपॉर्टेंट नहीं देना, ये तो निकल जाएगा, राइट. तो और एक सिम्टम वो बार बार बोलते थे कि वीकनेस बहुत लग रहा. फिर मैं जब और डिटेल में जाता था कि पहले से अभी वीकनेस कैसा, नहीं अभी अच्छा है. इसका मतलब क्या है? उनको खाली कंप्लेंट करना है बिकॉज ऑफ डिस्कंटेंटेडनेस, बिकॉज ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियाकल नेचर, राइट. लेकिन हमारा ध्यान पूरा उस तरफ होना चाहिए जो क्यूरिंग प्रोसेस है. मोर इम्पोर्टेंट लेस मतलब मोर इम्पोर्टेंट से अपने को लेस इम्पोर्टेंट की तरफ आना है. तो वो हो रहा है कि नहीं फॉलो? हमारा क्यूर प्रोसेस बराबर अकॉर्डिंग टू हेरिंग्स लॉ, अकॉर्डिंग टू नेचर्स लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस. जैसे कि जो जनरलाइज्ड टीचिंग था वो चले गया, अभी अबो डाउनवर्ड हो रहा है. फेस, उसके बाद चेस्ट पे आएगा, लेग्स पे आएगा और निकल जाएगा. और इसमें मैंने वो कंफर्म भी करवाया कि इसको ये ROS है कि नहीं है, क्योंकि उनको बैक में जो क्या बोलते हैं, वो क्या उन्होंने बोला, खरूज हुआ था, दैट इज द डर्मेटाइटिस, स्कैबिज, राइट. तो ये ROS है, ये निकल जाएगा. और नाउ वी आर ऑन द राइट ट्रैक फॉलोइंग द हेरिंग्स लॉ.
और सर इनको टूथेक हुआ था। अगर इन केस ये जो एक्यूट कंप्लेंट्स आते हैं पेशेंट को एंड इन वेरी सीवियर फॉर्म, तो ऐसे टाइम पे कैसे इंटरवीन करना है? बिकॉज कुछ पेशेंट यस टूथेक देखो मोस्ट टाइम ये प्रॉब्लम जाता ही है कि पेशेंट को टूथेक होता है, फिर वो पेन किलर्स लेते हैं, कोई पेशेंट रूट कैनल कर लेते हैं और पूरी सिस्टम डिस्टर्ब कर डालते हैं, पूरी क्योर प्रोसेस को हैम्पर कर देते हैं। तो ऐसे पेशेंट में आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसे टेम्पररी मतलब जैसा अगर बहुत सीवियर है, पेशेंट को अनबेरेबल हो रहा है, तो आप सेम डोज रिपीट कर सकते हैं या फिर गिव द एसएल, फिर वो 1 आवर दो, हाफ आवर दो, 10 मिनट्स में दो, लेकिन उसको किसी ना किसी तरह से उस कंडीशन से अवॉइड करो ताकि वो कुछ लेना और डिस्टर्ब ना करे। और बहुत ही सीवियर है तो फिर एक आधी पेन किलर आप दे सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक नहीं। यस थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, ऐसी कंडीशन में कई बार रूट कैनल वगैरह करा के आ गया तो बगैर बताए, तो फिर क्या करेंगे सर? हेलो, अगर बिन बताए वो रूट कैनल करके सर, मेरी आता आवाज है, आ रही? हाँ आ रही है आपकी आवाज। अगर वो विदाउट इंटिमिडेशन रूट कैनल करके आता है, इन द सेंस अगर पेशेंट हमें इन्फॉर्म करने के पहले ही अगर कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेके आता है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, अदर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेके आता है, कुछ ऑइंटमेंट लगा के आता है, तो ऐसे वक्त क्या करना चाहिए? रिपीट करना चाहिए सर। Sir, wait and watch. When weakness appear, then repeat the dose. थोड़ा सा डांटना चाहिए पेशेंट को ताकि वापस गलती ना करे। वो तो करेंगे। अगर पेशेंट की क्यूरिंग प्रोसेस क्यूरिंग प्रोसेस वहां हैम्पर हो गई है, अगर पेशेंट मतलब कुछ नए सिम्टम्स लेके आया या फिर ओल्ड सिम्टम्स ही लेके आया, या फिर पेशेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा, सिम्टम्स में कोई नया चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज है, तो वेट एंड वॉच फॉर फ्यू डेज, गिव द एसएल एंड वेट एंड वॉच। अगर पेशेंट को वापस वही सिम्टम आ रहे हैं जो सिम्टम्स के लिए हमने प्रिस्क्राइब किया, दैट इज द reoccurring of the old symptoms, तो हमें वही सेम रेमेडी रिपीट करना है। ये पेशेंट हैव नाउ स्टार्ट द न्यू सिम्टम्स, जो पहले नहीं थे ये अभी नए आ रहे हैं, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये नए सिम्टम्स कौन से हैं। मोर इंपॉर्टेंट लेयर में जा रहा है पेशेंट कि कुछ और अलग है। अगर वो न्यू सिम्टम्स मोर इंपॉर्टेंट सिस्टम में जा रहा है, इसका मतलब उस मेडिसिन ने वहां सप्रेशन कर दिया, राइट। फिर भी आप कुछ 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 डेज के लिए वेट एंड वॉच कर सकते हैं, ताकि हमारा अगर राइट कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन था तो फिर उसको वापस वो सिम्टम्स चले जाएंगे, वो बिकॉज ऑफ दैट सप्रेशन और द जो एकदम वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि अचानक सब सही चल रहा था और अचानक कुछ कभी नया आ गया जिसकी वजह से वो टोटली डिस्टर्ब हो गया। तो उसको पहले एक खुद को और बॉडी को वहां कॉम्प्रोमाइज करने दो, वो ऑटोमेटिकली कॉम्पेंसेट होके रिवर्स में आ जाएगा, क्यूरिंग प्रोसेस वापस स्टार्ट होगी। अगर नहीं हुई तो सेम रेमेडी आप रिपीट कर सकते हैं वहां पे, लेकिन इन हाई पोटेंसी, थोड़ी पोटेंसी बढ़ा के। यस, okay, yes, okay, now we will see the last follow. हेलो, yes, हाँ सर, अगर वो पेशेंट हॉट है और चीली हो गया और कंप्लेन आ गए जो है वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराया, तो क्या हमको उस कंडीशन के हिसाब से दवा चेंज करनी चाहिए? अगर वो एक्यूट है तो, और अगर वो जैसे सर दवा देने के बाद सही। यस, अच्छा, अगर वो एक्यूट प्रॉब्लम है, एक्टिविटी थर्मल थ्रस्ट चेंज हुआ है, तो आपको एक्यूट रेमेडी उसकी निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो एक्यूट में नहीं है तो वेट एंड वॉच। जैसे हमने एक पेशेंट को दवा दिया था, उसके बाद उसको वो समस्या में आराम हुआ, लेकिन स्किन का कंप्लेन आया,
तो स्किन वो जो हेयर है ना उसके रूट पे स्वेलिंग हो गया, पेन बहुत हुआ, तो उसके लिए वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया। उसके लेने के बाद फिर पेट खराब हुआ उसका, वो बहुत सीरियस हो गया, गैस बनने लगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, अस्पताल में भर्ती हो गया, एकदम एंजाइटी में चला गया। तो वो ट्रीटमेंट के बाद से ना वो हॉट पेशेंट था, चीली भी हो गया और उसके पेट के कंप्लेन आ गए, परेशान, काफी इरिटेट था। तो यहाँ पे सर अपने को SLD के वेट करना होगा कि फिर अगर वो हॉट पेशेंट चीली चला गया, अगर उसका कोई कम्प्लीमेंट्री ड्रग आ रहा है तो हमको वहां देना चाहिए, क्या करना चाहिए? यस, तो ऐसे कंडीशन में मोस्टली बहुत ही इजी वे है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। ऐसे कंडीशन में जहां हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली रियल में अब इसके बॉडी में क्या हुआ है, कुछ नया दिख नहीं रहा, कुछ पुराना भी दिख नहीं रहा, और पेशेंट ने मतलब एक ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि पेशेंट ने कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेके आया है, लेकिन गड़बड़ क्या हुई है कुछ भी नहीं, गड़बड़ क्या हुई है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जहां कंफ्यूजन है, आप क्लियर नहीं है किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी सिम्टम्स के लिए, किसी भी उसके कंडीशन के लिए, तो द सिंपल वे, वेट एंड वॉच। थोड़ा सा टाइम जाने दो। यस, कंप्लेन तो पुराना वाला ही आ रहा है, लेकिन बहुत सीरियस फॉर्म में आ गया, और दवा देने के बाद ना पहले जो कंप्लेन था वो काफी इम्प्रूवमेंट था, उसका स्टेमिना, थर्स्ट, भूख और कॉन्स्टिपेशन था, वो बहुत इम्प्रूवमेंट था। लेकिन उसको हेयर की, स्किन की बीमारी आई, जो हेयर रूट में पस फॉर्मेशन होने लगता है और स्वेलिंग हो जाती है, उसकी वजह से वो इतना इरिटेट हुआ कि एलोपैथिक दवाई लिया, और फिर वो एलोपैथिक दवाई लेने के बाद वो सीरियस हो गया, पेट खूब गया, पेट साफ नहीं हो रहा है, लग रहा है सांस बंद हो जाएगा, एकदम फ्रस्ट्रेट हुआ, रात में अस्पताल में भर्ती हुआ, ड्रीप चढ़ा, तो फिर उसके बाद भाग के आया। तो इतना कंडीशन उसका, मतलब तो वो ऐसे समझ में आया, ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? अभी देखो, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है कि अब पेशेंट जिस कंडीशन में एडमिट हुआ उस वक्त उसको क्या सिम्टम्स थे, वो जो सिम्टम्स लेके एडमिट हुआ वो सिम्टम्स उसके पुराने थे क्या, एक। दूसरा, हमारे मेडिसिन देने के बाद अगर वो सिम्टम्स आए हैं और उसको पस फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब आपकी रेमेडी राइट नहीं थी। और अगर वो दूसरा इन्फेक्शन कैच कर रहा है, मतलब योर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाज नॉट परफेक्ट। तो अभी वो सब डिस्टर्ब करके आया है, इसलिए आपको वापस रीटेक करके उसके मेडिसिन निकालना है, क्योंकि जो फर्स्ट रेमेडी थी दैट वाज नॉट द परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन सर ना, जो उसका ये जो हेयर होता है ना, हेयर में कभी कभी स्वेलिंग हो जाता है, दर्द होता है, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में याद नहीं है, हम लोगों के यहाँ बलटूट बोलते हैं हिंदी में, बलटूट। तो उसको यही हुआ था, लेकिन उसको पेट का कंप्लेन GIT का था, वो सब चीजों में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ था, भूख में, स्ट्रेंथ में। तो लेकिन उसके 7-8 दिन बाद उसको जब ये स्किन का प्रॉब्लम हेयर को लेके आया, वहां पे स्वेलिंग था, दर्द था उसको, तो उसके लिए वो एलोपैथिक क्रीम व्रीम लगा लिया। उसके बाद उसको पेट का टेबलेट खा लिया, तो फिर कॉन्स्टिपेशन उसको हो गया, फिर उसके बाद वो उसको लगा डिस्टेंशन हो गया है, फिर एंजाइटी, फिर गैस से सांस लेने में दिक्कत। वो 8-10 दिन अच्छा था, लेकिन जब हेयर के पास जो पेन हो रहा था हेयर में, रूट पे उसकी वजह से वो जाके उसका इलाज कराया और फिर डिस्टर्ब हुआ। तो वहां पे पस और कंडीशन एक थी सवाल क्या? जो आपने कहा कि पस फॉर्मेशन हुआ था क्या? अगर पस फॉर्मेशन हुआ होगा तो दैट वाज रॉन्ग। नहीं, तो सर एक सवाल मेरा और है, आपने जो पस फॉर्मेशन का बात किया, सर का जो केस है ना, आज जो आप सिविल कल पढ़ाएंगे ना, उस चैप्टर के पहले जो केस दिया गया, 3रा नंबर केस, सर के भी केस में ना, वो लास्ट में उसको पस फॉर्मेशन होता है, बॉयल्स होते हैं, और सर वहां पे लिख रहे हैं कि मतलब क्योर हो रहा है। वो पेशेंट को क्या दिया गया है? मर्कसाल दिया गया है, केस नंबर 3 अपने ही बुक में। तो वो सर मैंने कल पढ़ा, तो मैं सोचा था आपसे सवाल करूंगा इस मैटर जी। तो देखो, पस फॉर्मेशन में डिफरेंस है कि पस फॉर्मेशन का जो मतलब सर ने वहां लिखा है कि बॉइल्स हुआ था ना, राइट? बराबर है कि स्मॉल इरप्शंस दिए विद पस पुस्ट्यूल्स। क्या दिया है उस केस में? अगर सिंपल बॉइल्स है
और बिग एब्सेस है, जो एब्सेस होता है उसका राउंड पूरा सर्कुलर पार्ट रेड होता है और बीच में पस फॉर्मेशन होता है, अंदर से पूरी गठान हो जाती है, दैट इज द एब्सेस. एब्सेस फॉर्मेशन इट इज रॉन्ग. सिंपल इरप्शंस है जिसमें पस फॉर्मेशन हो रहा है, इट इज नॉट अ सप्रेशन, इट इज नॉट साइकोसिस, इट इज सोरिक. तो बबलू राउत जी आपका नेटवर्क चला गया शायद. वो सर मैं अभी जी बोलिए. नहीं, मैंने एक केस ये तो किया था देखो सर जो मैंने. थर्ड केस आपने बोला है उसमें सर ने लास्ट. नहीं सर वो नहीं सर वो मैंने नहीं कहा था. अच्छा. हरिओम सर ने हरिओम कहा, सिंह हरिओम. सर. जी हरिओम ने बोला सर. हाँ लेकिन हरिओम जी वो केस में भी सर ने बॉइल्स नहीं दिया है, सिंपल नहीं दिया है. स्किन एक्जिमेटस रेडिश रैश ऑन लेग दिया है. हाँ, वही मैं वो भी. हाँ बॉइल्स एंड पस का नहीं दिया है सर ने. तब मैंने पढ़ा था, मैं देख रहा हूँ सर. हाँ आप देखिए फिर व्हाट्सएप पे डाल दीजिए. ओके जी सर. तो हम पहले अभी एक लास्ट फॉलोअप देख लेते हैं पहले, फिर ये केस फिनिश हो जाएगी. ओके छाती अच्छी ऐसा दिखती. तीन बी असं दाब दिला असं कसं असं दुखतं. असा दाब दिला कारण त्याला ब्लिडिंग येत वाटतं एकदम. असं वाटतं आपण पडून जाऊ का. आता ते एपिसोड होत नाही. ते एपिसोड आता औषध न घेऊन 2-2 महिने औषध नाही घेऊन होत ना. किती महिन्यापासून झालं नाही. पेशेंट कह रहा है कि 2-2 महीने तक अगर वो अपनी मेडिसिन नहीं लेता है फिर भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. 4 महिने झाले. 4 महिने 4-5 महिन्यापासून झालं. मला वाटते 4 महिन्यापेक्षा जास्त झाले तुम्ही आले नाही. 6 महिने होऊन राहिले तुम्ही आले नाही. नाही 4-5 महिने झाले. मध्ये औषध नेलं होतं ना. औषध नेलं पण गदी जाताना नेलं होतं. दाखवायला नाही आले तुम्ही. पण आपण औषध सुरू केलं तेव्हापासून तसं एपिसोड आलाच नाही ना परत. नाही मग नाही. आता तर मी असं वाटतं की औषधाची पॉवर थोडी कमी केली पाहिजे. अच्छा काय. देखो जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस का पेशेंट था जिसको दवाई खाए बगैर अच्छा नहीं लगता था, वो पेशेंट खुद कह रहा है कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि मेडिसिन थोड़ी कम कर देनी चाहिए. मला वाटायला लागतं आतमधून. दिस इज रियल क्योर ना. हमने ये सवाल उठाया था, ये सवाल पूछा था कि कौन आज तक किसने बोला है पेशेंट को कि मेडिसिन आप स्टॉप कर दो करके. अब यहाँ पे इतना बड़ा प्रूफ है कि पेशेंट खुद कह रहा है कि मेडिसिन कुछ कम कर दो. यस सर. जास्त त्रास होते. काय त्रास औषध नाही घेत आहे, पोट फुगणं, गॅसेस, ग्रेडीनेस. समजलं ना. बरं ती तुम्हाला खाज येत होती माग तुम्ही बोलले होते. आता इतकी नाहीये. येते पण चेहऱ्यावर खाज आली होती. आता कमी आहे. कमी झाली. बघितलं तुम्ही काही लावलं नव्हतं ना त्याला. काहीच नाही लावलं. फक्त हे खोबरेल वगैरे. बरं अजून कुठे आली होती का परत. नाही कुठे नाही आली. ठीक आहे. बाकी अशक्तपणा किंवा असं काही. अशक्तपणा तर भयंकर आहे. याच्यामध्ये युरिनमध्ये लघवीमध्ये प्रोटीन जाते. घात. आणि लैंगिक विकनेस काय. अच्छा. किती वेळ झोप नाही स्वस्त. आणि इतके वेळ लघवीला जावं लागते मला. प्रोटेस्टचं ऑपरेशन झालं होतं मी तुम्हाला सांगितलं. त्या प्रोटेस्टच्या ऑपरेशनमुळे लघवीचा त्रास मला आहे. रात्री 4 तास झाला लागते, दिवसाला 4-5 तास लागते. अच्छा अच्छा. सकाळी फक्त पाणी जेवण झालं जास्त होते. अच्छा. कारण मला असं वाटतं की डायबिटीज शुगर वाढते जेवण झालं. बरं 2 घंट्यानं गेली आहे ती. हो का. हे शुगरचे शुगर 76, fasting and post meal 123, absolutely normal. Insulin, it is 2.0. More than 2.
completely normal, in normal range. So this is the last follow. So this was the case. Is complete cured by sulfur. Only 2 dose was given. So इस केस पे किसी को कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? हमारे मेडिसिन में कभी एंटीडोट नहीं करना। डॉक्टर शुक्रवीन बंसोड जी ने सवाल डाला है, शायद ये उस क्वेश्चन के लिए था जहां पे अगर पेशेंट कुछ लेता है तो एंटीडोट करना चाहिए, नो, या फिर बंसोड जी ही सही क्वेश्चन बता सकते हैं। यस, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। वही डाउट था मेरे को। यस, वही डाउट था कि एंटीडोट दे सकते क्या एलोपैथिक मेडिसिन देने के बाद? मोस्टली एंटीडोट कभी नहीं करना। एंटीडोट आप बहुत ही सीवियर कंडीशन में कर सकते हैं जहां एग्रेवेशन हुआ, बहुत ही सीवियर, दैट एग्रेवेशन इज लाइक अ रिएक्शन ऑफ एलोपैथी। उस केस में आप एंटीडोट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही रेयरली ये आपको दिखेगा। ओके, यस, कि इतना सीवियर डेडली एग्रेवेशन होता है अगर कोई मेडिसिन का, तब आप एंटीडोट कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक एंटीडोट करने का कभी काम नहीं पड़ता है। यस, थैंक यू। थैंक यू। यस, राउत जी। एक्सक्यूज सर, एक एंटीडोट के बारे में ही एक केस, ये एक्यूट में नहीं क्या सर, मैंने डल, चिली, थ्रसलेस और ड्राउजीनेस ऑफ हेवीनेस ऑफ आईलिड, उसके हिसाब से मैंने जेल्सियम दिया था। वो पेशेंट को ऑलरेडी बायोप्सी हुआ था, हार्ट कंप्लेंट भी थे उनको, और बहुत सारी दवाइयां वगैरह चल रही थी। जैसे मैंने जेल्सियम 200 दिया, उसका फीवर के लिए आया था मुझे, सिंपल फीवर थोड़ा सा कम हो गया उसका। फिर 2 दिन में फिर जैसे 101 था फीवर, तो उसके बाद में 2 दिन उसको अच्छा लगा, फिर बाद में उतना ही फीवर आया था, 101 पॉइंट समथिंग। फिर बाद में मैंने जेल्सियम 1M दिया। जैसे जेल्सियम 1M दिया, पेशेंट टोटली अनकॉन्शियस एंड पूरा टोटली कोलैप्स कंडीशन में गया सर, मेरे क्लिनिक में। ओके, हाँ, एक्यूट में, बिल्कुल एक्यूट में। फिर मैंने जस्ट घर से जैसे कैम्फर सुंगाया जस्ट, तो वो फिर जस्ट उनको घर वालों को भी बोल दिया मैंने इसको रेफर कर दो करके, ठीक है। फिर मैंने कैम्फर सुंगाने के बाद वो घर वाले पहुंचने तक वो फिर कॉन्शियस लेवल में आया। अच्छा, हाँ, कैम्फर सुंगाने के बाद। राइट, तो मैंने बोला ना अभी कि भाई ऐसे कंडीशन में दे सकते हैं आप, जो लाइक अ रिएक्शन अगर किसी पेशेंट को होता है किसी अपने मेडिसिन से, कि बहुत ही सीवियर एग्रेवेशन हो गया, सीवियर, तब ऐसे केस में आप एंटीडोट कर सकते हैं, और आपने सही डिसीजन लिया उस वक्त। तो उसके हिसाब से मैंने फिर इग्नेशिया दिया, वो फिर क्योर हो गया। यस, वही पेशेंट करने का मुझे हिम्मत नहीं होती जलसीमिया इट इज अ प्लांट रेमेडी, और उसके ऊपर कैम्फर बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। यस, तो नरेश बावनकुले जी ने कल एक रिपोर्ट भेजा था, राइट है? बावनकुले जी है? हाँ, यस सर। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम था उसमें? जी, आप उस रिपोर्ट के बारे में कुछ पूछ रहे थे ना? हेलो, हाँ, प्रेजेंट हो सर। हाँ, क्या रिपोर्ट्स के लिए आप कुछ पूछ रहे थे ना? हाँ सर। ईवेज जी रिपोर्ट क्या समझा नहीं, बोले आपने कुछ? हाँ सर। Okay. उस पेशेंट ये था सर। हेलो, हाँ, बोलिए।
हाँ, पेशेंट की कंप्लेंट ये थी सर कि एब्डोमेन कोलिक, वो पहले एब्डोमेन कोलिक था और बर्निंग मिक्चुरेशन था सर, और सीवियर मैंने उसकी जो है रेड यूरिनेशन था। तो पहले उसको ये डाउट था कि उसको मैंने मूत्र खड़ा करके उन्होंने गाउठी जो आयुर्वेदिक वगैरह औषध दी थी, सिर्फ मेरे पास पेन के लिए आया था। तो हाँ, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ, उसको मैनेज करने के बाद में सर उसका तो ये कंप्लीट हो गया, लेकिन जब वो यूएसजी निकाले तो यूएसजी में उसके हैं सिस्टिक लीजन, मतलब उसके किडनी में सिस्ट है। हाँ सर, यस, और सिस्ट भी काफी बड़ी है, 58 सीसी नोटेड कलेक्शन उसमें है, और काफी बड़ी 5.6, 4.2 एंड 5 सेंटीमीटर की सिस्ट है। इसको आपको बहुत अच्छी हिस्ट्री लेके मेडिसिन देना पड़ेगा, ये हो सकता है क्योर। नहीं, इसका प्रोग्नोसिस सामने क्या हो सकता है सर? ये इसका प्रोग्नोसिस क्योर नहीं, उन्होंने अगर ऐसे रख दिया, अगर उसने ये नहीं किया, उसको मैनेज नहीं किया, तो सामने उसका हाँ रीनल फेलियर में जा सकता है पेशेंट, दूसरा तो कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है सर। यस, ओके। और दूसरा बबलू राउत जी ने केस डाला था, शायद उनके लड़के की केस थी। हाँ यस सर। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम उसमें, क्या मतलब? सर अभी तो वो फिलहाल में अच्छा ही है सर अभी। हाँ। अभी इसको बार बार रेस्पिरेटरी कंप्लेंट जब से पैदा हुआ है, जैसे 5 मंथ्स तक तो वो ठीक ही था, 5-6 तक बॉटल फीडिंग है। एक्चुअली वो ट्विंस है, ट्विंस में से एक लड़का। फिर बाद में उसको 1-2 महीने हो गया, उसको बार बार रेस्पिरेटरी, वो भी डायरेक्ट थोड़ा सा कुछ हुआ तो डायरेक्ट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में चला जाता था। और मैंने एक्यूट रेमेडी उस कंडीशन के हिसाब से, जैसे चाम्य मिलाना वगैरह हो गया, अभी जैसे सीना वगैरह हो गया, तो कभी कभी बेलाडोना वगैरह हो गया, तो वो टेम्पररी थोड़ा सा ठीक लगता था। कभी कभी बार मैक्सिमम मुझे पेडियाट्रिशियन के पास लेके ही जाना पड़ता था मैक्सिमम, नहीं क्या? तो अभी लास्ट टाइम भी उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ था बिफोर 10 या 15 डेज पहले। फिर मुझे पेडियाट्रिशियन के पास ही लेना पड़ा, वो 10 डेज एंटीबायोटिक देना पड़ा उसको। फिर जाके वो भी रिकवर है, अभी फिलहाल में ठीक ही है। नहीं, तो उसका मैं अगर ये आपको रिकरेंट जो हो रहा है उसे, वो अगर स्टॉप करना है, उसे परमानेंटली क्योर करना है, तो आप मतलब उसके मम्मी की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, प्रेगनेंसी हिस्ट्री 6, 7, 8, 9 मंथ की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस केसेस में ऐसे, इसलिए उनकी हिस्ट्री लगेंगी तो ही हम उसमें कुछ निकाल सकते हैं, राइट? हाँ सर। हाँ, तो अगर आपको वो हिस्ट्री देनी है तो फिर आप एक बार मेरे हॉस्पिटल में फोन कर देना, वो आपकी हिस्ट्री ले लेंगे मिसेस की। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। सो 5:30 बज गए, 5:30 हो हेलो गए। सर। तो हाँ सर, जो मैंने कहा था बॉल्स के लिए जो है वो केस नंबर 3 में नहीं है, 4 में है सर। ओके, हेलो सर, हाँ। जो प्रोटियस दिए थे ना, प्रोटियस वाला केस है प्रोटियस जो दिया केस गया है। हाँ 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 हाँ, लास्ट में सर उसको जो है बॉल्स हुए हैं, बॉल्स ऑन स्किन पे सर ने लिखा है। मैं आज सुबह पढ़ा था तो मैं सोचा था एक बार आपसे चर्चा करूंगा। बॉइल्स आर सिंपल बॉइल्स। अगर वो बॉइल्स देखो ना, आपने नीचे के फॉलोअप में देखो, बॉइल्स लेजर ड्राइड अप, जी 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 है ना? सर। तो वो सिंपल बॉइल्स थे, एकदम सिंपल बॉइल्स। अगर वो पस कंटेंट बॉइल्स रहते थे तो वो ड्राइड होते ही नहीं थे, राइट? तो इट इज एक्सटरनाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स ओनली, इट इज नॉट अ एब्सेस। एब्सेस इट इज रॉन्ग। अच्छा, जो बड़े बॉल्स हैं जिसको एब्सेस कहते हैं, वो होने से अपने को लगेगा कि मेडिसिन का सिलेक्शन सही नहीं है। यस यस यस। सो आज की केस में क्या समझ में आया, क्या आप लोगों को मिला, कैसी लगी केस? कुछ नया सीखने को मिला, नहीं मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला सर।
यस, सभी को? हाँ Yes, सर, sir. हाँ सर। तो फिर एक बार Yes, तालियां sir. हो जाए। यस सर। डे टू डे। So thank you very much. गुड सर। Yeah. थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Yes, sir. So कल हम थैंक यू सर। फिर मिलेंगे। मतलब इसमें थैंक यू सर। Yes. उसमें सिफिलिटिक केसेस कम, लेकिन रूब्रिक कम, लेकिन इनेट कैरेक्टर पे हम लोग ने फोकस Yes, किया yes. सर, नहीं? Innate characteristics हमने देखी। ये Okay. केस एक्चुअली मैंने बताया क्योंकि लास्ट सेशन में हमारे इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स आई थी, इसलिए मैंने फिर वो केस दिखाया। हेलो। हाँ। ओके ओके सर। Yes. ठीक है सर। थैंक यू सर। Okay, so thank you very much. सब जने हेल्दी रहे, वेल्दी रहे। Thank you very much. राइट सर। Good night. Thank you very much, sir.